classroom, then you certainly have an internet issue with your email also. So um, please try. If it is late by a day or two, it's all right. But please try to submit only on the Google Classroom. If it shows turned in, that means it's been submitted. If it shows turn in or missing, that means you have to submit it. If the file is large, you can upload it on your own YouTube channel and post the link on the Google Classroom. Okay, ma'am. Okay, all right. मैम कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके सबमिट नहीं हुए हैं, तो ऐसा पता चल जाए कि किन लोगों के सबमिट नहीं हुए हैं। तो मैंने अभी बताया, अगर उसके आगे लिख के आ रहा है, अगर टर्न्ड इन लिख के आ रहा है तो सबमिट हो गया, नहीं लिख के आ रहा है तो नहीं हुआ। ऑलराइट, टर्न इन आ रहा है लेकिन अनसबमिटेड भी लिख रहा है नीचे, अनसबमिट। मैम कंफर्म एक लिस्ट आ जाती है जिनका जिनका नहीं हुआ है, वो आपको हैंडेड इन लिख रहा है। Okay, everyone, please be on mute now. It's time for us to start the class. Your resource person had joined 5 minutes before you were all given entry into the class. So please join me in welcoming Professor M. Sufyan Beg Saab, the principal of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology here. Computer engineer by his own training and background. He's also been chairperson of the Department of Computer Engineering. And academically, his experience is very, very diverse, and I must say quite distinguished also. Professor Beg has experiences of research, teaching and training at universities like Berkeley, California, and then recently the Ohio State University. In the United States, he's also worked at the Jamia Islamia and in the university. Good morning, ma'am. Good morning. I would wish everyone to be on mute, please. Good morning, Roshni ji. Professor Beg will be today speaking to you on outcome-based education, a very useful presentation that he will share with you on the basis of the experiences that he has drawn hands-on while working for the Aligarh Muslim University's NBA accreditation and as in his capacity as principal engineering college. Good morning, ma'am. On one more occasion, Professor Beg will be speaking to you on one more occasion, but that's under a different hat that he wears as Chairman Alumni Affairs Committee. And let me tell you, participants, both these topics that he's going to take are integral to the 10 modules of the faculty induction program. They are towards making you better academic leaders, and they are towards helping you diversify your role as a teacher in a higher education institution, which happens to be very different from being a teacher in a school. So thank you so much, Professor Beg, for your time. We know he is very, very hard pressed. He has many assignments, but our participants always benefit from him. From his presentation, and we are always thankful to him. So it's over to Professor Sufyan Beg, and I would request everyone to be on mute. Messages can come in the comment box now, and later in the last half an hour, you can have a discussion with him. But it's over to him for his 1 hour presentation. Professor Beg, please. Okay, thank you very much, Dr. Faiz Abbasi. I'll request you to stay here for a couple of minutes to help me know whether the slides are moving or not. Yeah, Right. I'm there. Yes, please. Meanwhile, please, everybody be on mute. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. So let us get along with our discussion. Good morning, sir. Good morning. Yes. Good morning, sir. जी good morning. हो गए good morning जी सब लोग. Good morning, sir. No. Please wait for his presentation. Write your good morning in the comment box. So can we see your screen, Professor Beg? Yeah. Just, I'm sharing it. Just hold on. Screen, it says. Yeah, is my presentation visible, Dr. Faiza? The presentation is visible, but it's in edit mode. Yeah, it's now there in the present mode. Acha. Are the slides moving too?
Yes, the slides are moving. Okay, so we are all set. Thank As you. also requested by Dr. Faiza Abbasi Sahaba, please everybody be on mute unless you have some very pertinent question to ask in between. Otherwise, towards the end, we can always take questions and discuss what all points you have. You can just note it down. So today we are going to discuss the outcome-based education vis-a-vis quality assurance. How is outcome-based education going to help us with the quality assurance, right? So let me begin by sharing a very pertinent question, quantifying quality. You see, whenever we talk about these two terms, quantity and quality, it comes to our mind that these two are contradictory terms. If you talk about quality, you shouldn't be talking about quantity. If you're talking about quantity, you shouldn't be talking about quality. But not quite true. One of the good old sayings that connects these two is, please be on mute. Everybody, please be on mute. What you can't measure, you can't control. I'll give you a few examples to stress what I'm saying. If you can't measure temperature, you can't control it. If you can't measure speed, you can't control speed either. Let me tell you and share with you a sad incident, but there is a lesson for all of us to learn from it. A few years back, you might recall there was this Air France flight which was flying back from South America to Paris. So on the way, that flight crashed into the ocean and all on board perished. Very, very sad accident. But there is a lesson for all of us to learn from it. When people started investigating as to the cause of the crash, and they dug out the human remains from the depth of the ocean, to their shock and dismay, they found out that the bones of the human remains were broken. And for all of them, the bones were broken. Now, this was something very shocking. The plane plunging into the ocean, it's not a ground, and then everybody is dying of drowning. How can their bones be broken? So people kept on investigating, and finally they drew the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad, जिसकी वजह से plane ने over speeding की. अब there was nothing to measure speed at that height. है ना, वहां कोई पेड़ नहीं है, जमीन नहीं है, moving back objects nahi hai by which you can gauge your speed. So the speed sensor went bad. The plane oversped to the extent that it broke into two because of the air pressure. Even at that height, speed itni zyada ho gayi ki plane it got broke into two, and because of that air pressure, the bones of the human beings were broken. And when the plane plunged into the ocean, nobody can swim either. यानी कुछ 1-2 घंटा कोई स्विमिंग कर लेता, 1-2 सर्वाइवर होते, कोई सर्वाइवर नहीं था, because the bones of everybody was broken and ultimately everybody perished. A very sad incident, but that gives us a lesson for us to learn for future. If we can't measure speed, we can't control it. Likewise for all the physical quantities, जो चीज हम measure नहीं कर सकते वो हम control नहीं कर सकते. तो इसी को हम continue करें. So our bottom line is, if we can't measure quality, we can't control it either. So we have to devise our own ways and means to measure quality. Quality measure नहीं कर पाएंगे तो हम उसको control भी नहीं कर पाएंगे. That is where our two terms, quantifying quality, they go and come together. Quantity, quality, they come together, because if we can't measure quality, we can't control it. So we'll have to quantify the quality in order to measure it. So that leaves us with the conclusion of this very slide, that assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. Zahir hai, quality ke respect mein control ka matlab enhancement only. Nobody would like to degrade the quality in any way.
तो controlling can go either way, increasing, decreasing, speed increasing, decreasing, temperature increasing, decreasing. But for quality, in most of the cases, if not all, quality control would mean its enhancement. But that a prerequisite to it is that we'll have to assess the attainment of quality. ठीक है, तो इसी तरह हमको quality of education भी assess करनी पड़ेगी. Towards that goal, we'll have to understand what outcome-based education is all about. Right? So this is our next slide. Levels of quality in education. The first and the foremost level that one must put in place is the approval. Bare minimum hai approval. If you've got an educational institution, the classrooms are physically there, the lab exists, the teachers are there, library is there, it will get approval. Nobody cares much about the quality of teaching, quality of books, quality of lab equipment, and so on. So approval, for example, for technical education is given by All India Council for Technical Education. Likewise, there are other bodies which provide the approval. फिर अप्रूवल से ऊपर का लेवल होता है क्वालिटी चेक बाय ISO. ISO आप सबने सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. इट इज मेंट फॉर क्वालिटी चेक. Just as ISO carries out quality check in all the different products, in all the different services, it also does a quality check on education. So these two put together should suffice. Approval और quality check हो गया, काम पूरा हो जाना चाहिए. Accreditation की क्या जरूरत रह गई? What is the need for accreditation? Let me explain. Accreditation not just accrues quality check, it provides the mutual recognition. देखिए, हर accreditation जो होता है, that happens according to any accord signed. For example, in technical education, there was this Washington Accord signed by various countries. They did the agreement that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective bodies in their countries. है ना? तो अब जो participating countries हैं, जिन्होंने sign किया वो agreement, अब they are duty bound to recognize the degrees of all the signatory countries. Refuse नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने sign किया हुआ है agreement. ये agreement जो है, that part brings in the mutual recognition which is missing in ISO. भाई ISO हमने करा लिया, कोई country माने, कोई country refuse कर दे, हम नहीं मान रहे ISO. There's no way that you can force on them that you have to accept our degrees because they are ISO certified. लेकिन accreditation में वो refuse नहीं कर सकते. Obviously, quality check तो होगा ही, that will be a prelude to accreditation. But this mutual recognition adds more power to it. यहां पर एक बहुत कॉन्सेप्ट की चीज आप लोग सब समझ लीजिए, गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में. इन इंडिया, नो यूनिवर्सिटी कैन बिकम अ यूनिवर्सिटी अनलेस पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ लॉ. आई एम रिपीटिंग. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian Parliament, that becomes a central university. If it happens to be an act of the State Assembly, then it becomes a state university. तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है. The difference lies here. Basic baat, in India, no university can become a university unless passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian Parliament, वो central university है. If it happens to be an act of any state, तो वो state की university है. ठीक है? अब जो law पास हुआ, जो act पास हुआ है, उससे पावर आएगी यूनिवर्सिटी के फंक्शनरीज में.
वाइस चांसलर के पास पावर कहां से आई? वाइस चांसलर को पावर दी एक्ट ने। एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, उस एक्ट की वजह से वाइस चांसलर को पावर मिली। वाइस चांसलर ने अपॉइंट किया प्रो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर की पावर्स आई वीसी से, जिसकी पावर्स हैं एक्ट से। इसी तरह एक्ट के बाद डॉक्यूमेंट लिखा जाता है स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो फर्दर एलाबोरेशन होता है एक्ट का। तो स्टैट्यूट्स में पावर आती है एक्ट से। फिर स्टैट्यूट्स के नीचे होते हैं ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस में पावर आती है स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट्स गेट इट्स पावर फ्रॉम द एक्ट। फिर नीचे होते हैं रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस में पावर आती है ऑर्डिनेंस से, ऑर्डिनेंस में स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट्स में एक्ट से। एक्ट तो ब्रीफ होगा, कंसाइज होगा कि भाई दिस इज द एक्ट ऑफ सच एंड सच यूनिवर्सिटी एंड it will be governed according to the statutes formulated by such and such body. तो एक्ट ने पावर दे दी, तो पावर परकुलेट्स डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह एक्रेडिटेशन में पावर आ रही है उस एग्रीमेंट से जो साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट की वजह से हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन या नैक को पावर मिल रही है। ठीक है, अभी और एलाबोरेट करेंगे इसको, आगे और एलाबोरेट कर देंगे। अभी हम ये बात करें कि हमारा ये जो दो बॉडीज हैं इंडिया में, दे आर नैक एंड एनबीए। नैक प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूट वाइड एक्रेडिटेशन, यानी नैक एक्रेडिटेशन हो गया तो जितनी डिग्रीज हैं वहां पर वो सबको एक्रेडिटेशन मिल गया। एनबीए इज डिग्री स्पेसिफिक एक्रेडिटेशन। अगर एनबीए एक्रेडिटेशन बीटेक इन कंप्यूटर को मिला है, सो दैट विल स्टे पुट विद बीटेक इन कंप्यूटर, यू कांट स्ट्रेच इट टू इवन एमटेक इन कंप्यूटर, यू कांट स्ट्रेच इट टू बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इवन। दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। नैक में ये है कि मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। एनबीए में कोई अच्छी डिग्री है उसको मिल जाएगा, जो अच्छी नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। इट इज फॉर द institution to decide which one they want to go for, or they may want to go for both, right? तो ये levels of quality in education है। सबसे पहला अप्रूवल, उसके बाद क्वालिटी जो ISO से भी हो सकती है, but ISO does not get any power to be necessarily accepted by the institutions across the globe. That is something which is done by the accreditation exercise. चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे भी बात करेंगे इस सिलसिले में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आईएसओ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेती है फिर सर ना आईएसओ का? नहीं, आईएसओ में हर चीज होती है, प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज में एजुकेशन भी आ जाती है ना। ये सर प्रोडक्ट और सर्विसेज बोथ के लिए है। ओके हाँ, बहुत सारे लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लेते हैं ना। ओके सर। तो उसमें आप ये इंश्योर तो कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी मिल गई, लेकिन आपकी क्वालिटी हर कोई माने, एक्सेप्ट करे, वो उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है ना। आईएसओ का जो सर्टिफिकेशन है उसकी मान्यता वो प्रतिबद्ध नहीं है दूसरों के ऊपर। चलिए अब एक्रेडिटेशन की हम फॉर्मल डेफिनेशन लें। मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, दिस इज वन ऑफ द मेनी डेफिनेशंस दैट एग्जिस्ट फॉर एक्रेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे डेफिनेशन तो यूनिक होनी चाहिए, एक ही डेफिनेशन क्यों नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस क्यों हैं, एंड व्हाई दिस वन यू आर कंसीडरिंग। Let me remind you of the good old story that you must have heard when you were young. There was this, there were a few people who were blindfolded and यानी उनके आंख में पट्टी बांध दी गई और एक एलिफेंट खड़ा कर दिया गया उनके सामने, and they were asked to touch the object and describe what that object is. The person who touched the trunk of the elephant, he said, oh, it's a python. जिसने उसका पैर टांगे छुई उसने कहा कि oh, it's like a tree trunk. जिसने the one who touched the tummy, he said it's like a wall. The one who touched the ears of the elephant, he said it's like a hand fan. ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि एक आदमी उसके डिस्क्रिप्शन को इनकम्पास नहीं कर पा रहा है। उसकी डेफिनेशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एलिफेंट इज नॉट in the purview of a single person. So different versions they exist. तो इसी तरह एक्रेडिटेशन जो है वो बहुत वास्ट टर्म है, बहुत
diversified term है. So obviously we may find out in literature several definitions. ये एक definition जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, है ना. Formal recognition of an educational program or institution, as the case may be, program in the case of NBA, institution in the case of NAC, by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. मैंने 3 terms, 3 key words इसके अंदर अंडरलाइन किए हुए हैं. पहली बात तो ये कि it should be carried out by an external agency, and the second thing is that it should be impartial assessment. ये दोनों ensure करना जरूरी है accreditation में. आप ये ना सोचें कि दोनों में से कोई एक हो जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. भाई एक्सटर्नल एजेंसी से करा लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इम्पार्शियल हुआ हो. या आप कहें कि हम एक्सटर्नल एजेंसी नहीं ले रहे हैं बट वी विल डू इट इम्पार्शियली, तो कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, है ना. अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं. तो एक्सटर्नल एजेंसी से करवाना भी जरूरी है और इम्पार्शियल असेसमेंट भी होना जरूरी है. अच्छा, यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट मैं आप लोगों से और शेयर करूं. आप पता नहीं इससे पहले यू हैव थॉट अबाउट इट और नॉट. 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव. हम एजुकेशनिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि एज सून एज वी कम अक्रॉस दीज टर्म्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हमारे दिमाग में फौरन आता है ओ ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स. और सब्जेक्टिव मतलब ऐसे टाइप. ठीक है, गलत नहीं है, बट दैट इज अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. इन द ब्रॉडर सेंस सब्जेक्टिविटी वो आंसर या वो रिस्पॉन्स या वो रिएक्शन होता है दैट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्टिविटी इज दैट फिनोमेना इन विच the actions are not dependent on the persons. वो वेरी नहीं करता. जैसे मल्टीपल चॉइस में जो सही है वो सही होगा, चाहे टीचर ए चेक करे, चाहे टीचर बी चेक करे, चाहे टीचर सी चेक करे. सब्जेक्टिविटी में ऐसे टाइप आंसर में एक टीचर उसी ऐसे को 10 में से 8 दे सकता है, द अदर टीचर में गिव 9 out of 10, वन टीचर में गिव 7.5 out of 10. इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So objectivity, subjectivity are much broader terms than just thinking in terms of the questions set by us. ठीक है. तो इसी तरह आपका जो assessment है that should be impartial, that should be objective and not subjective. एक एजेंसी से कराया उसने कुछ कहा, दूसरी से कराया उसने कुछ कहा, इसका मतलब क्राइटेरिया में गड़बड़ है, उनका क्राइटेरिया ठीक नहीं है. So it should be impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria, well-defined, well laid out, well-declared criteria. You have to define the rules of the game before the game begins. आपको खेल शुरू होने से पहले सारे रूल्स दोनों पार्टीज को, या जितनी टीम्स इन्वॉल्व है सबको बताना पड़ेगा. बाद में आप रूल चेंज नहीं कर सकते, आप डिक्लेयर कीजिए, है ना. गोल पोस्ट, वी कांट चेंज द गोल पोस्ट. गोल मारा, गोल नहीं हुआ, आप कह रहे गोल पोस्ट ही गलत लगा, वो यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए. कांट बी. या बॉलिंग की और बैट्समैन आउट नहीं हुआ तो आप कह रहे विकेट इधर होना चाहिए था, एक स्टंप गलत लगा हुआ है. नहीं, आप जो स्टंप तो पहले आप गाड़िए, फिर खेल शुरू होगा. तो इसी तरह जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आप पहले बताइए. यहीं से जन्म होता है OBE का, आउटकम बेस्ड एजुकेशन. पहले बताइए सबको क्या आउटकम होनी है. इफ यू टेल पीपल व्हाट आउटकम दे मस्ट एक्सपेक्ट, देन ओनली यू कैन गो अबाउट अचीविंग दोज आउटकम्स. तो ये एक नटशेल में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्रेडिटेशन. फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशन, फॉर्मल रिकॉग्निशन, इनफॉर्मल नहीं चलेगा. इट हैज टू बी फॉर्मलाइज्ड through any approved accreditation agency. Approval accreditation agency का on the basis of some agreement होगा. So formal recognition of an educational program or institution
program in the case of NAC, institution in the case of NBA, by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. ठीक? अब accreditation in India, as I said just now, institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council, which is abbreviated as NAC, an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. Technical programs, National Board of Accreditation, it provides accreditation to diploma level, to postgraduate level in engineering, management, architecture, pharmacy, hospitality, mass communication, and the list may go on. They may keep on adding what all trades they are going to provide the accreditation for. अब significance of accreditation की बात करें. At national level, it becomes easier for students and parents to select the institutions and programs for admission. अगर accreditation है तो admission ले लो, accreditation नहीं है तो admission मत लो. क्यों? इसलिए कि जो डिग्री अगर accredited body से, accredited institute से मिलेगी, so that degree will be acceptable for employment or further studies throughout the world, throughout the globe, in all those countries who have signed the agreement. Likewise, employers in deciding about the institutions for recruitment of graduates, employers के लिए भी आसानी हो गई. उन educational institutions में जाओ where the degrees are accredited. Also, it helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. ये भी बहुत important aspect है accreditation का. मैं example दूं, the engineering college that I am principal of, we had the National Board of Accreditation for all our programs, because of which we could get a World Bank funded project TechIP 2 worth 15 crores. उन्होंने criteria ही रखा था हम उसको देंगे या prerequisite है उस funding को लेने के लिए कि you should have your degrees accredited. हमारे पास थी luckily, so we went for it. फिर TechIP 3 हमको मिला, this third phase of it, in which we got 7.7 crores. तो वो सारा 22.7 crores that we could get only because of the accreditation for our degrees that we had in our engineering college. तो फंडिंग एजेंसीज देख सकती हैं, accreditation है तो फंडिंग दो, नहीं है तो मत दो. रेगुलेटरी बॉडीज भी, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा यूजीसी प्रोवाइड्स ग्रेड 1 ऑटोनॉमी, ग्रेड 2 ऑटोनॉमी, ग्रेड 3 ऑटोनॉमी. उसके साथ उसके अपने बेनिफिट्स हैं. ग्रेड 1 आर दोज who have got more than 3.5 score up till 4. 3.25 to 3.5 they may give grade 2. 3.25 and 3 they may give grade 3. Below 3 they may not give autonomy at all. So it helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. Also, it helps institutions in deciding about transfer of students or exchange of students from other institutions. Particularly in this national education policy, we have this academic bank and all. Students, they have multiple entry, multiple exit, exchange of students. वो सब तभी possible होगा when two institutions are at the same level. अगर एक accredited है, दूसरा accredited नहीं है, तो obviously there is no point or there is no way by which the students can be exchanged between them. दोनों accredited हैं, then you can easily exchange students seamlessly. तो ये तो national level के फायदे हुए सारे. At international level, mobility of students for pursuing higher studies and employment in other countries. These are the two main areas which the students pursue after graduation. या तो वो higher studies करेंगे या employment लेंगे. तो उसके लिए they may go to other countries and their degrees will have to be accepted, because of the agreement signed. So these are the significance of accreditation. ग्लोबल मोबिलिटी की और बात करें हम, जो ये इस स्लाइड में हम बात कर रहे थे ग्लोबल मोबिलिटी की, उसको हम और एम्फेसाइज करें तो there have been multinational accords for mutual recognition of accrediting process and thereby recognizing the accreditation. Washington Accord, जिसके मैंने एग्जांपल दी, that was signed in 1989 for engineering degree program. Sydney Accord in 2001 for engineering diploma polytechnic programs. Dublin Accord 2002
for engineering technicians program, Seoul Accord 2008 for professional engineers in computing and IT related fields. ये सिर्फ मैं example दे रहा हूँ आपको, और भी accords हो सकते हैं which I am not covering here, but that gives you an idea that these accords, they are going to make the accreditation almost mandatory for us. अब जैसे Washington Accord was signed among 6 countries to begin with: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK and United States. अब फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड की एक्रेडिटेशन बॉडी अगर अपनी किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन देती है, so that will have to be accepted by Australia, Canada, New Zealand, UK, United States, because all of them have signed to this. इसी तरह अगर न्यूजीलैंड कोई डिग्री अपने यहाँ की एक्रेडिटेशन करती है, so that degree will have to be accepted. Nobody can refuse in Australia, Canada, Ireland, UK and United States. The purpose was to mutually recognize and accept the qualifications accredited by signatories. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. ये घटते बढ़ते रहते हैं, ये 15 से ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, 5 से ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. You must be thinking कि ज्यादा तो हो सकते हैं, कम क्यों हो जाते हैं? Let me give you an example. मान लीजिए कोई ऐसा अकॉर्ड है जिसके अंदर यूक्रेन सिग्नेटरी है. अब सिग्नेटरी जो है वो दैट हैज टू गो बोथ वेज. कहीं और से स्टूडेंट जाए तो यूक्रेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यूक्रेन की डिग्री लेकर को कहीं और जाएगा तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नाउ यूक्रेन इज एट वॉर. वो ये कह सकते हैं कि भाई हम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब अकॉर्ड तो ये कहेगा कि नहीं, आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है अगर कोई आपके यहाँ आना चाह रहा है तो. सो व्हाट विल हैपन? यूक्रेन विल विदड्रॉ फ्रॉम द अकॉर्ड, कि हम विदड्रॉ कर रहे हैं, ना हम किसी का स्टूडेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना दूसरों के ऊपर जरूरी है मैंडेटरी दैट दे एक्सेप्ट आवर स्टूडेंट्स. सो दैट वे द लिस्ट में यूजुअली इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट डिक्रीज आल्सो. Members of Washington Accord have outcome based accreditation. तो अब देखिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन में पावर कहां से आई? इस वॉशिंगटन अकॉर्ड से आई. एक्रेडिटेशन में पावर आई एनबीए में वॉशिंगटन अकॉर्ड से, और इसी तरह आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन होने की वजह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन गॉट इट्स पावर फ्रॉम द वॉशिंगटन अकॉर्ड. ठीक है. अब ये कुछ सिग्नेटरीज ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये इंडिया भी ऐड हो गया. अब चलिए एक्रेडिटेशन मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे. एक तो ये देखिए मिनिमल मॉडल. See, one of the main differences between a developing country and a developed country. Developed country always thinks ahead of time. अगर कोई ब्रिज आज बना रहे हैं तो वो एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या ट्रैफिक होगा इस ब्रिज पर, उसके हिसाब से डिजाइन करो. In the developing countries, they designed the bridge by keeping today's needs in mind. By the time the bridge gets completed, it has already fallen short. The traffic has already exceeded the design of that bridge. तो हम लोग मिनिमल मॉडल पे चलते हैं. इसी तरह एक्रेडिटेशन का मिनिमल मॉडल वो होता है दैट डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फ्यूचरिस्टिक जो ना हो. आज के दिन क्लासरूम्स कैसे हैं, आज के दिन टीचर्स कैसे हैं, आज के दिन बुक्स कैसी हैं, आज के दिन आपकी लाइब्रेरी कैसी है, एक्रेडिटेशन मिल जाएगा. वो मिनिमल मॉडल है. ये द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग विद द मिनिमल मॉडल इज it doesn't check the system in place, कि सिस्टम इन प्लेस है ग्रोथ के लिए या नहीं है. आज के दिन तो किताबें हैं, लेकिन अगर आपका सिस्टम इन प्लेस है तो ये किताबें आपने अगर लिख रखा है कि भाई हम 10 साल बाद इनको चेंज करेंगे, नया एडिशन लाएंगे, अगर इस तरह का सिस्टम इन प्लेस है देन यू विल राइज अबव द मिनिमल मॉडल. फिर एक इनपुट आउटपुट मॉडल होता है एक्रेडिटेशन का, कि आपने इनपुट भी देखा और आउटपुट भी देखा. Obviously, the main input to any educational institution are the quality of students. तो आपने देखा कि admitted students की रैंक कहाँ से कहाँ तक जा रही है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, है ना, और 12th की परसेंटेज कितनी लेकर आए वो. ये सब चीजें देखकर आपने इनपुट भी देखा, आउटपुट भी देखा, कि अब ये निकले तो बाहर इनका प्लेसमेंट कैसा हुआ, हायर स्टडीज में कितने गए, ना. ऑल सच थिंग्स यू आर चेकिंग.
फिर एक आउटकम मॉडल है। आउटकम मॉडल ये कहता है कि व्हाई वरी अबाउट द इनपुट मोर, एंड दे ड्रॉ देयर inference from the very basic example. Suppose there is a field. If we give it is the most fertile piece of land. If we give them the best seeds, if we give them the best fertilizers, if we give them ample water, but crop is not up to the mark, so that means there's something fundamentally wrong. कुछ गड़बड़ है मामला. What ultimately matters for a farmer, it is the crop or the yield that ultimately matters. है ना? तो why look at the input कि fertilizer कैसा था, पानी कितना था, seeds कैसे थे, जमीन कैसी थी, देखने के बजाय आप ये देखिए कि क्रॉप कितनी आ रही है, उसकी क्वालिटी क्या है. आउटकम, that is what outcome based model is, or outcome based education is, that you look at the end product. Obviously for a reasonably good end product you have to have a reasonably good input. अगर आप इनपुट बहुत खराब देंगे तो वो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट सिचुएशन हो जाएगी. यूजुअली सिस्टम थ्योरी में ये कहते हैं कि अगर मोर देन 50% इनपुट आपका अच्छा है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव गुड आउटपुट. हाँ, अगर आपका इनपुट ही 50% से ज्यादा खराब है, then you are not duty bound to give a good product, because that is a garbage in garbage out situation. ठीक है. So outcome model based on assessing the outcome of the educational institution. Of what is outcome based education? Starting with a clear picture of what is important for students to be able to do. Then organizing the curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. You declare the rules of the game first. देखिए, एथलेटिक्स में देख लीजिए आप, कोई हाई जंपर है, he or she will set the bar first. Then he or she will try to assert to cross that bar. ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि मैं पहले कूद लूं फिर आप नाप लीजिएगा कि मैं कितना कूदा. वेट लिफ्टर है, he or she will set the weights first. आधा किलो 250 ग्राम जितना बढ़ाना है वो बढ़ाएगा, and then he or she will try to lift that weight. है ना. इसी अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं सारी एग्जांपल्स तो एथलेटिक्स की दे रहा हूं और बात कर रहे हैं हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम एजुकेशनल फील्ड आल्सो. कोई अच्छी बुक आप देखिए, the author of that book will declare at the beginning of the chapter what all concepts you may expect to learn from this chapter. हर चैप्टर के शुरू में वो ऑथर बताएगा कि आप ये सीखेंगे इस चैप्टर में. क्या फायदा होता है इसका? When you are reading that chapter, you already have at the back of the mind that these are the concepts that you have to pick up from this chapter. तो जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आता है आप एकदम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, अरे ये तो इस चैप्टर में सीखना है. फिर towards the end of the chapter, the author concludes that these are the points that we have learned in this chapter. तो शुरू में बताना वो आदमी को सतर्क कर देता है, स्टूडेंट को सतर्क कर देता है कि ये मुझे सीखना है. और एंड में बताने से असेसमेंट होता है कि आपने सीखा वो सब कि नहीं सीखा. नहीं सीखा तो आप वापस जाइए, फिर से चैप्टर पढ़िए, फिर से उसके शुरू में जो आउटकम्स लिखे हुए हैं वो पढ़ लीजिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें से लेना था, जब कभी आएगा तो हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है उसके ऊपर. इन द सिमिलर वे, outcome based education proceeds by starting with a clear picture of what is important for students to be able to do. Then organizing the curriculum, delivery and assessment. 3 चीजें. curriculum उसके हिसाब से सेट करना, कोर्स डिलीवरी उसके हिसाब से करना और असेसमेंट इस हिसाब से करना कि जो आपकी आउटकम है, जो क्लियर पिक्चर थी, वो क्लियर पिक्चर अचीव हो जाए. वी आर एबल टू अचीव आवर आउटकम. देखिए पिक्टोरियली इस तरह इसको शो कर सकते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन को कि व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू. आउटकम बेस्ड एजुकेशन, हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स अचीव द आउटकम, उसके लिए आउटकम बेस्ड करिकुलम. फिर आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग. फिर आउटकम बेस्ड असेसमेंट फॉर हाउ टू मेजर व्हाट द स्टूडेंट्स हैज अचीव्ड. राइट. तो ये
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का। आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉलोड बाय आउटकम बेस्ड करिकुलम, आउटकम बेस्ड लर्निंग टीचिंग या डिलीवरी जो भी कह लीजिए, एंड आउटकम बेस्ड असेसमेंट इन द एंड। अब ये एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है इन अ नटशेल। सबसे ऊपर विजन है, which is the long term goal. In order to achieve that vision, we have to have smaller mission statements. मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट कीप पेशेंस। फिर उसके नीचे होता है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर होता है प्रोग्राम आउटकम्स, और सबसे नीचे होता है कोर्स आउटकम। डिजाइन चलता है ऊपर से नीचे, यानी यू हैव टू सेट द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट और द डिपार्टमेंट फर्स्ट। In order to reach that vision, you will have to define your mission. ये तो होते हैं डिपार्टमेंट लेवल, ये दोनों होते हैं डिपार्टमेंट लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल के विजन और मिशन। फिर ये दो होते हैं प्रोग्राम लेवल के, यानी बीटेक इन कंप्यूटर, बीए इन हिस्ट्री, बीएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन रिमोट सेंसिंग, है ना। ये दोनों होते हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम आउटकम। Program outcome वो qualities which the graduate of any discipline should have at the time of graduation. ये qualities graduation के वक्त हर graduate में होनी चाहिए। फिर ये course outcome है, ये course level। उस प्रोग्राम के बहुत सारे पेपर्स होंगे, कोर्सेज होंगे जो आप पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, तो हर पेपर के खत्म पर वो कोर्स आउटकम्स स्टूडेंट्स के अंदर आने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा कोर्सेज पास करता रहेगा, ग्रेजुएशन के करीब बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उसके अंदर वो प्रोग्राम आउटकम्स आते रहेंगे जो कोर्स आउटकम में मैप्ड हैं। ग्रेजुएशन के वक्त उसके अंदर सारे प्रोग्राम आउटकम्स आ जाने चाहिए। फिर वो ग्रेजुएट करके बाहर चला गया, उसने सेल्फ डेवलप किया अपने आप को। He became a manager, she became a teacher, she became a businessman, he became entrepreneur. How did they self-develop themselves 4-5 years after the graduation? ये है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने एक बच्चे को टॉपर तो बना दिया, प्रोग्राम आउटकम तो आ गया, लेकिन बच्चा फ्यूचरिस्टिक नहीं है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसके अंदर नहीं है, तो उसका पीईओ में कंट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट सेल्फ डेवलपिंग। ठीक है, तो ये नट शेल में है, अब अलग अलग भी हम उनको लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि डिजाइन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, असेसमेंट गोज फ्रॉम बॉटम टू अप। सबसे पहले कोर्स आउटकम को असेस करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, आगे बताऊंगा। फिर जैसे जैसे कोर्स पास करता जाएगा प्रोग्राम आउटकम आते जाएंगे। ग्रेजुएशन के वक्त प्रोग्राम आउटकम को हम असेस करेंगे। फिर बच्चे के 3-4 साल बाद ग्रेजुएशन के हम पीईओ को करेंगे। फिर इसी तरह हम मिशन और विजन को भी इवैल्यूएट करेंगे कि कितना मिशन कितना विजन हम अचीव कर पाए। एक चीज और नोट कर लीजिए, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स और द क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट ऑफ एनी डिसिप्लिन शुड हैव इन हिम और हर एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। उसको आपने अपने प्रोग्राम के लिए अडॉप्ट कर लिया तो वो प्रोग्राम आउटकम्स बन गए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस डायग्राम का, क्योंकि हम इसे बार बार रिफर करेंगे। इस डायग्राम को हम बार बार रिफर करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अलग एक फाइल में डिस्प्ले कर लीजिए। ठीक है, अब एक एक करके देखा जाए। ओके सर, ओके। सबसे पहले विजन देखिए, व्हाट इज विजन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विजन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। When we were students, we had a professor of mechanical engineering who had an old Fiat car. वो जमाना था जब दो ही गाड़ियां होती थी इंडिया में, फिएट या एम्बेसडर। तीसरी गाड़ी होती थी तो कहते थे भाई ये इंपोर्टेड होगी, है ना। तो he had an old Fiat car and at the back of that car there was a sticker. Sounds funny, but that has a lesson for us to learn. That sticker at the back of that old Fiat car read, "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." Old Fiat car के पीछे लिखा है, "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." That is a classic example of the vision of that car. What you want to become when you grow up. आप कैसे अपने डिपार्टमेंट को देखना चाह रहे हैं आज से 20 साल बाद,
कैसे अपने इंस्टीट्यूट को देखना चाह रहे हैं आप आज से 50 साल बाद, दैट इज द विजन, है ना। कहते हैं ना विजनरी लीडर और विजनरी पर्सन, जिसने फोरसी कर लिया, चीजों को पहले से देख लिया कि आज से 20 साल बाद मुझे इसको कैसा शेप अप करना है। सो दैट इज विजन। मिशन आर शॉर्टर गोल्स टू अचीव विजन। फिर एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए होगा या पढ़ाता होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होती है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होती है। इफ यू डोंट नो कंप्यूटर साइंस, इवन देन फ्रॉम द वेरी वर्ड्स और द टर्म्स यू कैन मेक आउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इज विजन एंड शॉर्ट टर्म इज मिशन। ठीक है। अगेन let me give you an example from sports. Suppose a player has a vision that I want to become the number 1 player in the whole world. Now, in order to reach that vision, he'll have to set up shorter mission statements, match by match or series by series. क्रिकेट का गेम है तो वो ये कहेगा इस सीरीज में मुझे इतने कैचेस पकड़ने, इतने रन्स बनाने, इतने विकेट्स लेने, है ना। ये इस मैच में मुझे इतने रन्स बनाने हैं, इतनी सेंचुरीज स्कोर करनी है ना। तो वो मिशन जैसे जैसे अचीव करता जाएगा वैसे वैसे विजन के करीब होता जाएगा। अगर हर सीरीज का मिशन वो अचीव कर लेगा या नियर अचीवमेंट होगा, सो अ पॉइंट ऑफ टाइम वुड कम व्हेन ही और शी विल बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द होल वर्ल्ड। तो ये फर्क है विजन और मिशन में, है ना। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम हैव टू बी अलाइंड विद ईच अदर। अगर अलाइन नहीं होंगे तो मिशन के अचीवमेंट से विजन नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ा सा एक जोक आप लोगों को याद दिला दूं मैं, आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। दे वो 4 फ्रेंड्स, उन्होंने सोचा कि भाई एक टैक्सी खरीदी जाए, टैक्सी चलाते हैं और उसके फायदे जो होंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। टैक्सी खरीद ली, पूरा दिन गुजर गया, किसी ने उनकी टैक्सी हायर नहीं की। अब जाहिर है थोड़ा अकल के कम थे चारों, इसीलिए कुछ और काम नहीं कर पा रहे थे, तो टैक्सी खरीदी थी चारों ने मिलकर। तो भाई पूछा गया क्यों किसी ने टैक्सी हायर नहीं की, तो पता लगा चारों अपनी टैक्सी में पूरे दिन बैठे रहे। जब वो चारों बैठे रहेंगे तो किसी को दिखेगी नहीं कि टैक्सी खाली, नोबडी केम टू हायर देयर टैक्सी। तो उनको समझाया गया भाई तुम लोग टैक्सी से उतरो, टैक्सी खाली होगी तब तो कोई आएगा, रोकेगा, तुमको हायर करेगा। अच्छा 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 कल से हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा कल अगले दिन सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो दिन भर चारों धक्का मारते रहे, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। भाई क्यों नहीं बढ़ी, तो मालूम हुआ 2 आगे से पीछे मार रहे थे, 2 पीछे से आगे धक्का मार रहे थे, तो गाड़ी बढ़ी नहीं। फिर उनकी बेवकूफी थी। तो ऐसी बेवकूफी हम ना करें कि विजन एक डायरेक्शन में जा रहा है हमारा और मिशन हमारा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब मिशन अचीव करते रह गए, विजन पे पहुंचे ही नहीं हम। अलीगढ़ से मान लीजिए जाना था कोलकाता, हम बैठ गए दिल्ली की गाड़ी में, तो कोलकाता कैसे पहुंचेंगे हम। तो दे हैव टू बी अलाइंड। इसीलिए ये जो डिजाइन है हमारा, इस फिगर में जो डिजाइन है वो सबको साथ लेके चलेगा। विजन सबसे पहले, उससे अलाइन करते हुए हम मिशन बनाएंगे, उससे अलाइन करते हुए पीईओ बनाएंगे। ठीक है। तो ये तो हुआ डिस्क्रिप्शन ब्रीफ विजन मिशन का। अब विजन मिशन कैसे बनेंगे, कोई आसमान से तो उतरेगा नहीं कि आप रात में सोए थे, सुबह आप उठे तो आपके हाथ में एक पर्चा था, उस पर विजन मिशन लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको विजन मिशन यू विल हैव टू, अच्छा ऐसा हो भी जाएगा, मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाए तो वो विजन मिशन जो है वो आपके दिल के करीब नहीं होगा, इसलिए कि आपने बनाया नहीं उसे, वो तो आसमान से उतर आया है ना। Whatever is obtained the hard way, that is what you cherish more, that is what you treasure more. तो अब कैसे विजन मिशन कैसे सेट किया जाए। देखिए मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट विजन डिपार्टमेंट मिशन बनाना है ना। मैं डिपार्टमेंट लेवल इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग तो यंग हैं, अभी इंस्टीट्यूट लेवल नहीं पहुंचे, अभी आप हेडिंग और डिपार्टमेंट और 2, दैट इज योर अटमोस्ट जॉब। एक दिन आएगा, मैं दुआ करूंगा जल्दी वो दिन आए, जब आप कोई इंस्टीट्यूट हेड कर रहे होंगे, है ना, प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, वहां पर फिर आपको इंस्टीट्यूट का विजन मिशन बनाना होगा। तो प्रोसेस यही रहेगा। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करते हुए डिपार्टमेंट विजन मिशन होना चाहिए। आप ये पूछ रहे होंगे कि अच्छा जब कल को हम इंस्टीट्यूट विजन मिशन बना रहे होंगे तो उसको किससे अलाइन करेंगे,
उसका भी आंसर है, मैं आगे दूंगा आंसर। ब्रीफ में आपको बता दूं कि वो अलाइन किया जाएगा फाउंडर के विजन मिशन से। जो भी बॉडी या जो भी पर्सन जिसने फाउंडर है आपके इंस्टीट्यूट का, उसके विजन मिशन से वो अलाइन किया जाएगा इंस्टीट्यूट का विजन मिशन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डिपार्टमेंट विजन मिशन की। तो इंस्टीट्यूट का विजन मिशन लेंगे और उसके बाद एक कंसल्टेटिव प्रोसेस, फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचरिस्टिक हो विजन, एक्सट्रापोलेट कीजिए कि आज से 15 साल बाद कौन कौन से कोर्सेज रेलिवेंट होंगे, है ना, बच्चे किस क्वालिफिकेशन के आ रहे होंगे, क्या शेप होगा, वही तो आपका दिखाएगा, आपका विजन दिखाएगा। और इसीलिए कंसल्टेटिव प्रोसेस लिया है फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट का, क्योंकि वहां पे विजनरी लोग होंगे, दे विल गिव यू द प्रॉपर कंसल्टेशन। देखिए, कंसल्टेशन प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अपार्ट फ्रॉम रीचिंग टू अ गुड कंक्लूजन, through consultation you can get people on board। आप लोगों को अपने साथ ले सकते हैं कंसल्टेशन में। आप जब उनका ओपिनियन लेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे ओपिनियन से ये चीज डिसाइड हुई है, तो फिर वो आपका साथ देंगे उस चीज को अचीव करने में। आप बहुत अच्छा विजन मिशन ले आए बट यू डिडंट डू द कंसल्टेशन प्रोसेस, people will not come with you because they didn't have any contribution in the formulation of vision mission। इसलिए ये कंसल्टेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल बॉडीज को देखिए वो क्या कह रही हैं, पेरेंट्स को देखिए वो क्या चाह रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली तो पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, है ना। और ये काम एक बार में नहीं होगा, आपको मल्टीपल इटरेशंस लेने पड़ेंगे। आप वर्जन 1 लाएंगे, फिर दोबारा आप फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, पेरेंट, प्रोफेशनल बॉडीज, डेटा ऑन फ्यूचर पे वो ड्राफ्ट पेश करेंगे। फिर वो लोग सजेस्ट करेंगे ड्राफ्ट तो अच्छा है, 80% अच्छा है, थोड़ा सा इसमें ये और टचिंग कीजिए। आप दोबारा उसको बैठ के करेंगे, फिर आप रिव्यू करने के लिए लाएंगे। 2, 3, 4 सेवरल इटरेशंस के बाद फिर वो विजन मिशन आपका बनेगा। अब क्या है, थॉरली एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, यू वर्कड इट द हार्ड वे। अब एवरीबॉडी विल हेल्प यू इन अचीविंग दैट विजन मिशन, है ना। सो दैट इज हाउ द आर्टिकुलेशन ऑफ विजन एंड मिशन। अच्छा, बन गया विजन मिशन, it doesn't have to be carved in stone। लिटरली तो आप कर सकते हैं कि भाई पत्थर पे खुदवा के लगा दिया आपने, ये विजन मिशन है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पत्थर पे खुदवा के मत लगवाइए, आप वुडन बोर्ड पे लगवाइए विजन मिशन। इसलिए कि हर चीज की एक्सपायरी है, भाई ह्यूमन बीइंग की एक्सपायरी है, तो इसी तरह विजन मिशन की भी एक्सपायरी है। द मोमेंट यू कम अप और यू फॉर्मुलेट द विजन मिशन, तभी उसकी एक्सपायरी भी तय कीजिए कि आज से 30 साल बाद हम इस विजन को रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा विजन पर्टिनेंट है कि नहीं है, हमारा विजन रेलिवेंट है कि नहीं है। हो सकता है 30 साल बाद आप ये डिसाइड करें कि नहीं, विजन सही है, लेट अस कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 30 years, बट स्टिल आफ्टर 30 years विल सिट डाउन एंड विल रिपीट द इंटायर प्रोसेस। इसी तरह मिशन, आपने कहा दिस हैज टू बी गुड फॉर 20 years, तो 20 साल बाद आपने इसकी एक्सपायरी तय की। 20, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग की दवा लेते हैं, उसकी एक्सपायरी होती है। दवा वगैरह ऐसी चीजें हैं कि हम फेंक ही देते हैं क्योंकि लाइफ का मसला होता है, लाइफ एंड डेथ। बिल्डिंग्स में हम फौरन डिस्कार्ड नहीं करते, हम उनका हेल्थ चेकअप करा लेते हैं कि भाई हमने एक्सपायरी तय की थी, अब इन सालों में बारिश कितनी हुई, नहीं हुई, वेदर क्या रहा, यूसेज कैसा रहा, उसकी बेसिस पर हेल्थ चेकअप करो एंड लेट अस नो वेदर द बिल्डिंग इज गुड फॉर नेक्स्ट 10 years, 15 years, 20 years और नॉट, है ना। तो हो सकता है आप उसी बिल्डिंग में कंटिन्यू कर जाए अगले 15-20 साल तक। तो इसी तरह विजन मिशन जो बना, उसकी एक्सपायरी भी तय कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए कि आज से 30 साल बाद हम बैठ के इसको रिविजिट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेशन ऑफ विजन और मिशन का प्रोसेस हुआ। अब देखिए, मैं जैसे एग्जांपल दूं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन, हमने इसको अलाइन किया फाउंडर के विजन से। In line with the vision of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of the university, Aligarh Muslim University, the Zakir Hussain College of Engineering and Technology has always stood for peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper। ये उनका विजन था। हमने उससे इन लाइन अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का बनाया, टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, एक्सीलेंस हम यहाँ लाए इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल। साइंटिफिक तो हमने ले लिया, अब चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो टेक्निकल हमने ऐड किया।
with the standards at par with national and national institutes of repute and to serve as quality human resource provider to the society and industry. तो हमने ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट किया। जरूरी नहीं है सारी चीजें अडॉप्ट करें आप, लेकिन अगर कर सकें, द मोर यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट द बेटर। आप ऐड ऑन कर लीजिए और चीजें उसमें ऐड कर लीजिए, जैसे हमने टेक्निकल ऐड किया। तो ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन है, जो मैंने एग्जाम्पल से एक आप पुट इट हियर। आप जरूरी नहीं कि आप अपने कॉलेज का यही विजन ले लें डिट्टो, नहीं, आपकी कंडीशन अलग हो सकती है, आपके फाउंडर का ड्रीम अलग हो सकता है, आपकी लोकेशन वाइज यू मे हैव अदर प्रायोरिटीज। तो ये जो प्रोसेस बताया गया, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने यहाँ का विजन मिशन बनाइए। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाउ डज द विजन लुक लाइक। अब इस इन ऑर्डर टू अचीव दिस विजन वी हैव टू हैव मिशन स्टेटमेंट्स to offer state-of-the-art UG, PG and doctoral programs, to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure, so as to produce leaders and innovators of tomorrow, to produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind, जो ऊपर आपने देखा अभी, so much emphasis on that. To undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry. ये बहुत जरूरी है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक होना चाहिए। उसके लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, उनके लाइव प्रोजेक्ट, सो दैट योर स्टूडेंट्स दे गेट द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो हमने अपने हिसाब से बनाया, हम इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप जिस एरिया के आप उसके हिसाब से बनाएंगे, आप जिन लोगों से राय लेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, वो आपको उस हिसाब से राय देंगे, ओपिनियन देंगे। एंड टू बी अमंग टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारे मिशन स्टेटमेंट्स हैं टू अचीव द विजन दैट आई हैव गिवन अबव। अब फिर उस ट्रायंगल को देखिए, अगर आपने उसका लिया हुआ तो दो चीज कवर हो गई, विजन मिशन। विजन कवर हो गया और मिशन कवर हो गया। अब बात हो रही है प्रोग्राम लेवल, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और पीओ। जैसा मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया, PEO आर दोस क्वालिटीज दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मैच्योर्ड ग्रेजुएट्स 4-5 years डाउन द टाइमलाइन आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। और PO वो क्वालिटीज हैं जो एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन द स्टूडेंट शुड हैव। These POs are aligned with graduate attributes, the generic qualities that a graduate of any discipline should have. उससे अलाइन कीजिए अपने प्रोग्राम आउटकम को। एग्जाम्पल में अगर दूं, फ्रूट, नॉर्थ इंडिया जहां पे हमारी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फेमस फ्रूट्स इज मैंगो, राइट। अब मैंगो इज राइप, PO अचीव्ड, लेकिन वो मैंगो कैसा पका, देखने में कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, दिस इज ऑल PEO। आम पक गया, PO। अब कैसा पका, PEO will tell you how is that mango ripe। वो जिस फील्ड में गया वहां कैसा सर्व कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बना तो कैसा बना, टीचर बना तो कैसा बना, मैनेजर, हाउ इज ही अ मैनेजर, हाउ इज ही एज अ बिजनेसमैन, है ना। तो ये फर्क है PEO और PO में। दो ऊपर वाले इंस्टीट्यूट लेवल थे, अब दो हमने प्रोग्राम लेवल किए, ठीक। अब देखना पड़ेगा इनका प्रोसेस क्या हो, डिफाइनिंग ऑफ PEOs। तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन से आपने अलाइन किया डिपार्टमेंट विजन मिशन, और इससे अलाइन करेंगे आप PEO, और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को भी लेंगे। फिर कंसल्टेशन प्लीज म्यूट, एडमिन देखिए कौन अनम्यूट हो गए, डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी। फिर आप कंसल्टेशन प्रोसेस कीजिए, फैकल्टी, स्टूडेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, एलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज। भाई एडमिन इज देयर, एडमिन प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। तो इन सब के व्यूज को कलेक्ट करेंगे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा जो इसको फैसिलिटेट करेगा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विल कलेक्ट देयर व्यूज, program assessment committee will summarize the views of all the stakeholders, and the department advisory board will accept or recommend a review। रिव्यू के लिए आप फिर वापस जाएंगे, फिर देखेंगे अलाइनमेंट उसका डिपार्टमेंट विजन मिशन से, GA से, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से,
फैकल्टी, स्टूडेंट, डेटा ऑन फ्यूचर अलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज, सेवरल इटरेशंस लेते हुए आप पीईओ बनाएंगे, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच विल बी स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम। अगर बीएससी केमिस्ट्री का बना है तो बीएससी केमिस्ट्री का ही पीईओ होगा। ये बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नहीं हो सकता, बीएससी बायोकेमिस्ट्री का अलग होगा, बीएससी फिजिक्स का अलग होगा, और फॉर दैट मैटर इवन फॉर एमएससी केमिस्ट्री इट विल बी डिफरेंट, है ना। तो ये पीईओ प्रोग्राम स्पेसिफिक बन गया। अगेन दिस शुड नॉट बी कार्व्ड इन स्टोन। इसकी एक्सपायरी तय कीजिए कि आज से हम 15 साल बाद बैठेंगे और पीईओ को रिविजिट करेंगे बीएससी इन केमिस्ट्री के। हो सकता है हम सेम कंटिन्यू कर जाएं, कुछ कंटिन्यू कर जाएं, कुछ को चेंज करें या सबको चेंज कर दें, दैट वी विल डिसाइड देन। अब ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जिनसे हमारे पीओ असाइन है वो 12 हैं। उसमें सबसे पहला लेवल तो नॉलेज है, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस है, फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस है। भाई प्रॉब्लम की एनालिसिस कर ली तो अब सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। मॉडर्न टूल यूसेज, ये भी एक जीए है कि बच्चा यहाँ से मॉडर्न टूल यूसेज सीख कर जाए। ये नहीं कि उसको जाके जमीन खोदनी है तो वो फावड़ा खुरपी ही ले रहा है। भाई मॉडर्न टूल क्या है, उसको यूज करो, है ना। इफ यू नॉट using your tools properly that means you're decreasing your efficiency। फिर साथ साथ इंजीनियर एंड सोसाइटी, देखिए बहुत जरूरी है इंजीनियर एंड सोसाइटी, है ना। हम लोग क्या है, सोसाइटी को वी इंजीनियर्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे एथिक्स हो, वी आर द बिगेस्ट कल्प्रिट। देखिए अगर एथिकल वैल्यूज नहीं होंगे तो एक इंजीनियर पूरा देश बेच खाएगा। ऐसी इन्वायरमेंट के लिए अगर हम केयर नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो वही हाल होगा जो पॉलीथीन की वजह से हमें परेशानी आ रही है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, दिस पॉलीथीन केम इनटू मार्केट, एवरीबॉडी वाज सो मच जॉयड, ओवरजॉयड आई वुड से, कि अरे वंडर मटेरियल आ गया है, वाटर प्रूफ है और स्ट्रेंथ है उसके अंदर और डीके नहीं होता। ये उस वक्त प्लस पॉइंट लिया जा रहा था, डीके नहीं होता। अब आज वही रो रहे हैं हम कि प्लास्टिक इतना हमने ओवर यूज कर लिया। अब हम प्रॉब्लम में, द प्लैनेट अर्थ इज इन डेंजर। समुंदर की मछलियां वो पॉलिथीन खा ले रही हैं जिसकी वजह से वो मर जा रही हैं, जानवर खा ले रहे हैं, काउज खा ले रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि वो ना डाइजेस्ट होती है ना डीके होती है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट की हैं। एक जगह मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा, गौर से सुनिए इसको। We learn from history that we do not learn from history. We learn from history that we do not learn from history. यही हो रहा है। पॉलिथीन को आज हम रो रहे हैं लेकिन वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। आप कहीं जाइए, आजकल बात हो रही है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। इतने सोलर पैनल हमने लगा लिए हैं कि आज से 20-25 साल बाद व्हेन ऑल दी सोलर पैनल्स विल बी डिस्कार्डेड, तो हम इतना ही या इससे ज्यादा रो रहे होंगे जितना आज हम पॉलिथीन को रो रहे हैं। कोई हमने इसकी प्लानिंग नहीं की, कोई हमने इसकी स्टडी नहीं की कि हम इसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे इन सोलर पैनल्स को। ई वेस्ट हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। ई वेस्ट इंडस्ट्रीज का क्या, वो तो पंप किए जा रहे हैं, आईफोन्स पंप किए जा रहे हैं, आईपैड्स पंप किए जा रहे हैं, हर साल नया ले आते हैं। उनकी मार्केटिंग गिमिक है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया, साहब आईफोन 15 आ गया, आईफोन फलाना आ गया, आईफोन 100 आ गया, और लोग अभी पिछला वाला सही चल रहा था उसको फेंक देते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल। यार हमारे पास लेटेस्ट क्यों नहीं होगा। तो इंजीनियर्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट, सो वी हैव टू हैव दीस जीएस इन अस। फिर इसी तरह इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, अकेले भी काम कर सकें, टीम में भी काम कर सकें। एक अच्छा प्लेयर वो है जो सिंगल्स भी अच्छा खेल सके और डबल्स या टीम स्पोर्ट्स भी अच्छा खेल सके। अगर हम अकेले तो अच्छा खेल पा रहे हैं और टीम स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हैं तो आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। तो इसी तरह हमें जो भी हमारा काम है उसमें हम अकेले भी अच्छा कर सकें और टीम दे दी जाए तो टीम के साथ भी हम अच्छा कर सकें। बचपन में याद कीजिए मैथमेटिक्स में सवाल आते थे, एक आदमी ये काम इतने दिन में करता है तो 5 आदमी ये काम कितने दिन में करेंगे। वो क्या है, वो इंडिविजुअल और टीम वर्क का पहला लेसन था हमारा। अकेले हो तो 5 दिन ले लो, 5 लोग हो तो 1 दिन में खत्म करो। इसको नहीं होता है 1 दिन में खत्म क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वी हैवंट लर्न।
We are not as efficient in a team game as we are efficient when we are alone. खैर ये पूरा एरिया है जो हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर साइंस में. स्पीड अप जो है दैट हैज टू बी लीनियर, कि जैसे जैसे प्रोसेसर्स बढ़ाते जाएं वैसे वैसे उसका काम जो है वो तेज होना चाहिए. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देखिए आज हम जो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को रो रहे हैं और मॉडर्न मेडिसिन हमारी कहाँ पहुंच गई, मॉडर्न सर्जरी कहाँ पहुंच गई कि हार्ट ट्रांसप्लांट की बात होने लग गई. हार्ट ट्रांसप्लांट होने लग गया, बल्कि एनिमल्स के हार्ट हमने लगा दिए ह्यूमन बीइंग्स में. इतना डेवलप कैसे कर गए? बिकॉज दे कम्युनिकेटेड. हमारे जो वैद्य या हकीम या जो भी आप कहिए ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, वो क्या है, हकीम साहब अपना सारा जो हुनर था वो अपने साथ लेके कब्र में चले गए, है ना. अपने बेटे तक को नहीं सिखाया कि वो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा. पहले हम सुनते हैं हकीम होते थे नब्स पे हाथ रख के सारा बता देते थे ये बीमारी है ना. वो सब कहाँ गए? कब्रों में चले गए. उनका जो हुनर था वो आगे गया नहीं. जो उनके पास नुस्खे थे, जो डायग्नोसिस थी, जो प्रेस्क्रिप्शंस थे, वो सब खत्म हो गए. तो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन haven't progressed as much as our modern system has, just because of the difference of communication. तो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, जो भी काम करें उसको लिखिए. भाई कल को हम रहें ना रहें, दुनिया से चले जाएं या हम दूसरी कंपनी में चले जाएं, दूसरा इंस्टीट्यूशन हम बना लें, तो जो हमारी जगह पर आए वो he doesn't have to reinvent the wheel, he doesn't have to start from scratch. हम डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के जाएंगे, यहां तक हमने कर लिया है, जो कोई आए उससे आगे काम करे. ऐसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग. दे से that the day you graduate your studies do not end, they begin that day. पीएचडी के लिए बहुत अच्छा कोट है कि पीएचडी इज नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च, इट इज अबाउट लर्निंग हाउ टू डू रिसर्च. पीएचडी में ये सिखाया जाता है कि रिसर्च कैसे की जाए. रिसर्च की नहीं जाती है, हो जाती है रिसर्च ऑन द वे, वो अलग बात है, लेकिन असल सीखना होता है थोड़ी देर में आना. ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा काम खत्म नहीं होगा ग्रेजुएशन के वक्त, बल्कि अब तो हमारा काम शुरू. somebody who graduates say in BTech in computer and he says now my job is over, नहीं भाई अब तो तुम्हारा जॉब शुरू होगा. somebody does MBBS and he or she says कि my job is over, नहीं भाई अब तो शुरू होगा, आप practice, you will start now. तो life long learning. ऐसे project management and finance, because everything ultimately has to run on money. तो फाइनेंसेस भी हमें देखने, ये नहीं कि हमने अपनी जान लगा दी और हमें कुछ नहीं मिला या हम नुकसान में रहे, वो भी नहीं होना चाहिए. ऐसी मैनेजमेंट, थिंग्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम. आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया लेकिन उसकी फ्लड आ चुका, पहले ही ब्रिज बनाना था और फ्लड आने से पहले बनाना था, हमने फ्लड आने के बाद बनाया, तो फायदा क्या हुआ? नुकसान हो गया, है ना. तो ऑल दीज आर द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव टू अडॉप्ट एज आवर POs, प्रोग्राम आउटकम्स. ये इन्हीं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको दे दिया. सो आई एम स्किपिंग दीस स्लाइड्स. वही सब है, कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. अब प्रोग्राम आउटकम्स आर नैरोअर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड बी एबल टू डू बाय द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन. गाइडलाइंस क्या है? प्रोग्राम आउटकम्स बेसिकली डिस्क्राइब नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू द प्रोग्राम as well as by the time of graduation. They should not be too broad. They must align with graduate attributes. They must reflect all the graduate attributes and they should contribute to achieve PEOs. Upward compatibility भी होनी चाहिए और graduate attribute से alignment भी होना चाहिए. फिर उस triangle के देखिए, यह है PO, तो उसमें upward compatibility भी हो और यहाँ जो हमने GA बनाया था उस GA से वो align भी हो. इसका तरीका क्या हो? सिमिलर टू PEOs, बस फर्क क्या है कि अब PEO से भी अलाइन करना पड़ेगा हमको. इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, विजन, मिशन से अलाइन हुआ PEO. फिर वी कलेक्टेड व्यूज, वी अलाइन विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल बॉडीज, alumni, industry, faculty, student, data on future, views collected by program coordinator, summarized by program assessment committee and accepted or reviewed by department advisory board. Whatever are the defined POs, don't carve them in stone, subject them to a review after whatever time you set.
10 साल 12 साल बाद हम इन पीओस को फिर से देखेंगे। फिर एक नई टर्म आई है पीएसओ। क्या है ये? 1-to-1 अलाइनमेंट ऑफ पीओ विद जीए है। जीए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट 12 है तो पीओ भी 12 है। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आर लेसर इन नंबर एंड स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम। देखिए पीओ पीएसओ में फर्क समझने के लिए मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनिए। 3 यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेक इट जस्ट एज एन एग्जाम्पल, डोंट रीड टू मच इनटू द एग्जाम्पल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। तीनों जगह पे मान लीजिए एमए इन हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है? तो एमए इन हिस्ट्री का पीओ तो तीनों जगह सेम होगा, क्योंकि एमए इन हिस्ट्री का प्रोग्राम है दैट हैज टू बी अलाइन्ड विद द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। तो एमए इन हिस्ट्री का पीओ तीनों यूनिवर्सिटीज में सेम होगा, बट दे मे हैव डिफरेंट पीएसओस। For example, in AMU, they'll say that our PSO is medieval history. BHU may say that our PSO is ancient history. JNU may say that our PSO is modern history. 3 phases हैं हमारी हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स जो उस डिपार्टमेंट का फोकस एरिया है उसको रिफ्लेक्ट करेगा प्रोग्राम में। यही फर्क है पीओ और पीएसओ में। पीओ जो है वो जेनेरिक होंगे, अलाइन विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द कोर्स आउटकम। 2 इंस्टीट्यूट लेवल हो गए, 2 प्रोग्राम लेवल हो गए, फिर आखिरी ये हर कोर्स का कोर्स आउटकम। इट हैज टू बी स्टूडेंट फोकस्ड, नॉट प्रोफेसर फोकस्ड। पहली बात तो ये कि अपने हिसाब से नहीं बल्कि स्टूडेंट के हिसाब से सोचिए। That means learning and not coverage oriented. बच्चे का फायदा किसमें? मैं क्या पढ़ा सकता हूं इस पे मत जाइए, बच्चे को क्या सीखना जरूरी है वो सिखाइए। There has to be alignment between course, program and institutional levels. वो बात मैंने बता दी कि upward compatibility होनी चाहिए। Focus on ability central to the discipline. जो उसका जो थीम है उस कोर्स का, उसके हिसाब से COs बनाइए। यूजुअली क्या करते हैं कि अगर यूनिट सिस्टम है सिलेबस का, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो हर यूनिट का एक सीओ रख लेते हैं। उस यूनिट का जो सेंट्रल आइडिया उसको ले लेते हैं। जैसे कोई डिजिटल सिस्टम का पेपर है तो उसमें पहली यूनिट हो गई इंट्रोडक्शन, तो अब उसमें बता दिया आपने, उसका सीओ अलग। फिर दूसरी यूनिट है कॉम्बिनेशनल सिस्टम्स पे, तो उसके हिसाब से बता दिया। तीसरी है सीक्वेंशियल सिस्टम, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। चौथी है एएलयू डिजाइन। तो जो सेंट्रल थीम है उस यूनिट का, उसका सीओ ले लीजिए। तो जितनी यूनिट उतने सीओ ले लेने में आसानी रहती है। फोकस ऑन एबिलिटी सेंट्रल टू द डिसिप्लिन, फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर, है ना? यानी कि आज सिखाया कल खत्म। बहुत अच्छी मैं आपको एग्जांपल दूं। आईआईटी दिल्ली में मैं पीएचडी कर रहा था, तो वहां के एक प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस से एक डिप्लोमेट ने पूछा कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू टीच योर स्टूडेंट्स। द आंसर दैट द प्रोफेसर गेव, दैट इज एन आई ओपनर। उस प्रोफेसर ने कहा, वी डोंट टीच देम लैंग्वेज, वी टीच देम प्रोग्रामिंग। भाई लैंग्वेज तो बदलती रहेगी, कभी फोर्ट्रैन थी, कभी कोबोल थी, कभी पैस्कल थी, कभी सी थी, फिर सी प्लस प्लस, फिर सी शार्प, फिर जावा, पाइथन चल रही है, कल को कुछ और आ जाएगी। हम अगर प्रोग्रामिंग में उनको स्ट्रांग बना देंगे तो लैंग्वेज कोई भी आए उसका सिंटैक्स पिकअप कर लेना, दैट विल बी वेरी इजी। सो एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर द टेस्ट ऑफ टाइम एंड दे आर लिमिटेड टू मैनेजेबल नंबर। इतने ज्यादा मत बना दीजिए कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सही है, एक यूनिट का एक सीओ रख लीजिए, गाइडलाइन है, यू में फॉलो। एक बार फिर से बता देते। पीएसओ जी, पीएसओ, हाँ एक बार फिर से सर। नहीं, पीएसओ मैंने बताया ना कि जो स्पेसिफिक फोकस है किसी डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से वो पीएसओ रख सकते हैं ऑन टॉप ऑफ पीओ। एग्जाम्पल मैंने दी थी कि एमए इन हिस्ट्री एएमयू, बीएचयू, जेएनयू में पीओस तो सेम होंगे, पीएसओ फर्क हो सकता है। एएमयू में मेडिवल हिस्ट्री में भी पीएसओ, वहां पर बीएचयू में एंशिएंट हिस्ट्री में भी दी पीएसओ, और जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री में भी दी पीएसओ। तो जिस जगह का जो फोकस है, या केमिस्ट्री की एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं पर अब जो पीओज होंगे वो तो कॉमन होंगे,
लेकिन कहीं पर हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोकस कर लिया, कहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री तो वो ले लिया, कहीं पर इनऑर्गेनिक है वो ले लिया, कहीं फिजिकल है वो ले लिया। तो इस हिसाब से आप अपना फोकस ऑन टॉप ऑफ पीओ रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे सर पहले हम लोग सुन चुके थे कि आईआईटी कानपुर जो है वहाँ का कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, हाँ हाँ तो इस तरीके से हम लोग समझ ले कि वो नहीं कंप्यूटर साइंस ज्यादा फोकस नहीं करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें यह है कि कंप्यूटर साइंस अच्छा है, वो पीओ नहीं पीएसओ नहीं बन सकता है। आप अभी तक यही नहीं समझे फर्क। ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये दो चीज जो है वो तो इंस्टीट्यूट लेवल है, ये दो चीजें जो है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक है, और ये आखिरी चीज कोर्स स्पेसिफिक है। तो आपने कंप्यूटर साइंस जो कहा वो तो इंस्टीट्यूट लेवल की बात है कि इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। आपको Yes, sir. प्रोग्राम की बात करनी पड़ेगी। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अलग होगा, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस अलग होगा, ठीक है। ओके सर, उसका फोकस एरिया क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ओके। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते, अच्छा ये आखिरी चीज, कोर्स आउटकम में स्पेसिफिक इनफ टू बी मेजरेबल, बिकॉज व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल। तो आपको इसको स्पेसिफिक इनफ बनाना होगा। दिस इज मोस्ट फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब थोड़ा सा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करें। बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1913 1999 में। हम चलते हैं टेक्सोनॉमी पे। देखिए ये लर्निंग लेवल्स हैं, 6 लेवल्स इन्होंने डिफाइन किए थे। सबसे पहला लेवल है नॉलेज, फिर उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करना, उसको अप्लाई करना, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया गोल है, ये तो हुई नॉलेज। आपने बैठ के रख लिया दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, नॉलेज मिली आपको। कॉम्प्रिहेंशन क्या, भाई गोल का क्या मतलब है, स्फेरिकल है कि सर्कुलर है। स्फेरिकल है तो वो जो पोल्स के ऊपर थोड़ा फ्लैटेंड है, वो पूरा उसका कॉम्प्रिहेंशन। दुनिया गोल है का क्या मतलब, सिर्फ रट लेना काफी नहीं, उसका समझना। नॉलेज मतलब रट लेना, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। फिर एप्लीकेशन, जो आपने समझा उसको आप अप्लाई कर सकें। दुनिया गोल है तो अब उससे कैसे दिन रात बदल रहे हैं, कैसे मौसम बदल रहे हैं, कैसे वो रोटेट कर रही है, कैसे वो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, ये सारी चीजें उसकी एप्लीकेशन हुई, है ना। फिर ये तीनों, ये जो तीन नीचे वाले ट्रेड्स हैं, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। इतना तो हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन। ये ऊपर की तीन चीजें जो हैं 4 से 6 तक, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। अब एनालिसिस सिंथेसिस में क्या फर्क है, इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। उसका कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। अगर आपको इनपुट दिया हुआ हो, सिस्टम पता हो, आउटपुट निकालना हो, तो ये हुई एनालिसिस, ठीक है। इनपुट पता हो, सिस्टम मालूम हो, आउटपुट निकालना, दैट इज एनालिसिस। उससे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है कि आपको आउटपुट पता है और इनपुट पता है। इनपुट पता, आउटपुट पता, आपको सिस्टम पता करना है, डिजाइन करना है, वो सिंथेसिस हुआ, है ना। तो एनालिसिस सिंथेसिस में ये फर्क है, और जाहिर है सिंथेसिस इज मोर चैलेंजिंग। तो चैलेंज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है चैलेंज। फिर इवैल्यूएशन एट द टॉप, कि जो कुछ किया आपने उसको इवैल्यूएट कर सकें कि भाई नॉलेज कितनी आई, कॉम्प्रिहेंशन कितना हुआ, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस आप कितना कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन होना जरूरी है। तो ये ब्लूम्स लर्निंग लेवल्स हैं, टेक्सोनॉमी लेवल्स हैं जो आने चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। इनफैक्ट आप जो क्वेश्चन पेपर सेट करें उसमें भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेवल देखिए। कुछ ऐसे हो जो सिर्फ नॉलेज चेक कर रहे हो ताकि हर स्टूडेंट कर सके, कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशन चेक कर रहे हो। यहां तक तो एवरेज स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, वो टफर क्वेश्चंस हों जो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन को करें ताकि सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स वहां पर स्कोर कर पाए, एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड। बहुत आसान पेपर बना दिया, सारे लोअर टेक्सोनॉमी लेवल्स पे बना दिए, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन पे, तो हर स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ जाएंगे, गधे घोड़े बराबर। और बहुत मुश्किल बना दिया, सिर्फ एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन देखने लग गए, तो जो बच्चे थोड़ा सा बिलो एवरेज हैं वो फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी आपके मिक्स्ड ऑफ दीज लेवल्स होने चाहिए। फिर टेक्सोनॉमी को लोगों ने रिविजिट किया, एंडरसन कॉर्फवॉल ने किया 2001,
उन्होंने टू रिमेम्बर, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज, टू इवेलुएट, और एक ऐड किया टू क्रिएट, ये उन्होंने ऐड किया, है ना। अब इसके अंदर आ जाता है इनोवेशन, इन्वेंशन। आप सोच रहे होंगे इनोवेशन इन्वेंशन में क्या फर्क है। देखिए, मेरा एक तरीका है इन दोनों को डिफाइन करने का। आपको पॉइंट ए से बी पे जाना है, रास्ता ही नहीं पता था, किसी ने रास्ता निकाला, ये हो गया इन्वेंशन। रास्ता तो पता था लेकिन किसी ने बेहतर रास्ता निकाला, बेहतर इन टर्म्स ऑफ रीचेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, व्हाटएवर, वो हुआ इनोवेशन। तो इन्वेंशन तो एक ही बार होगा, लेकिन इनोवेशन बार बार हो सकता है, नए नए रास्ते आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है इन्वेंशन और इनोवेशन में। बहुत से लोग सोचते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है। इसके लिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, डैड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो बाप ने बड़ा अच्छा बच्चे को समझाया, उसने कहा, लुक इट इज लाइक दिस, I discovered your mom and then we invented you. I discovered your mom and then we invented you. Mom was already there. I discovered her. And then together we gave birth to you. That is like invention. बहुत तो invention discovery में ये फर्क है, और invention innovation में फर्क ये है कि एग्जांपल रास्ता ही पता नहीं। जी कुछ कह रहे हैं? तो इन्वेंशन इनोवेशन में फर्क यह है कि इन्वेंशन रास्ता ही नहीं पता था, आपने रास्ता निकाला, वो इन्वेंशन है। रास्ता तो था लेकिन आपने बेहतर रास्ता निकाला, दैट इज इनोवेशन। तो वो क्रिएट में ये सब आ जाता है, किसी हद तक डिस्कवरी भी आ जाती है क्रिएट में। तो इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, दे ऑल कम अंडर क्रिएट। अब आपके ओबी स्टेप्स, डिफाइन आउटकम्स, डिजाइन करिकुलम, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स, डिटरमिन एडवांसमेंट। अगर डिटरमिन एडवांसमेंट नहीं किया तो आप सिर्फ यू कांट मेजर पे रुक गए, यू कांट कंट्रोल आपने किया ही नहीं। तो एडवांसमेंट्स भी होने चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देंगे ना तो आप समझ जाएंगे। ये एक्चुअली बात कर रहा है कि कैसे हम असेस करें, क्वांटिफाइंग क्वालिटी की बात कर रहा है ये। आप समझिए कैसे। हमने कोई एक प्रोग्राम लिया, मैंने बीई इन ट्रिपल ले लिया है, आप बीए इन हिस्ट्री ले लीजिए, बीएससी इन केमिस्ट्री ले लीजिए, एमए इन सोशियोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। सबसे पहले हमें वो याद कीजिए, ये वाला जो ट्रायंगल था। अब असेसमेंट चलेगा नीचे से ऊपर, डिजाइन था ऊपर से नीचे, और असेसमेंट चलेगा। सबसे पहले हमें सीओ को असेस करना पड़ेगा। तो हर कोर्स के खत्म पर, हर सेमेस्टर के हर कोर्स के खत्म पर हमको सीओ को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। किस तरह? कितने परसेंट बच्चे उस कोर्स में पास हुए, उतना परसेंट उस सीओ का डायरेक्ट अटेनमेंट हो गया। 70% बच्चों ने पास किया, बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका मतलब सीओ अटेनमेंट का डायरेक्ट कंपोनेंट 70% है। 80% बच्चे पास हो गए तो सीओ अटेनमेंट का डायरेक्ट कंपोनेंट 80% है। 100% पास कर गए तो डायरेक्ट अटेनमेंट 100% है। उसमें फिर एक इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऐड किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे कोर्स एंड सर्वे। बच्चे से, स्टूडेंट से पूछिए, उसको लिस्ट दीजिए कि तुम्हारे इस कोर्स के ये सीओ थे, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच हैव यू इनकॉर्पोरेटेड इन योरसेल्फ दीस सीओस। अब हर बच्चा बताएगा अलग अलग। एक बच्चा कहेगा मेरे अंदर CO1 मैं समझता हूँ 85% आया, CO2 मेरे अंदर 80% आया, CO3 90% आया, और CO4 मेरे अंदर 75% आया। दूसरा बच्चा कुछ और कहेगा, उसको एवरेज आउट कर लीजिए। वो हो गया इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ CO अटेनमेंट। डायरेक्ट कंपोनेंट जो पास परसेंटेज से आया था और इनडायरेक्ट कंपोनेंट जो फीडबैक से आया, दोनों को आप ऐड कर दीजिए इन अ सर्टेन रेशियो। मान लीजिए डायरेक्ट कंपोनेंट 80%, इनडायरेक्ट कंपोनेंट 20%, या डायरेक्ट कंपोनेंट 75%, इनडायरेक्ट कंपोनेंट 25%। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आएगा कि 80-20 लेना है, 75-25 लेना है। इसका जवाब ये आप कहीं से लें, लेकिन जो कुछ लें उसको पहले डिक्लेयर करें। ये नहीं कि जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब आप बैठे कि इसको 75-25 करूं या 80-20। नहीं, पहले से बताइए साहब 80-20 रहेगा हमारे कोर्स का, सबको पता होना चाहिए।
ताकि कल को आप रूल ऑफ द गेम ना चेंज करें, गोल पोस्ट ना चेंज करते फिरें। जब हम अच्छा नहीं पढ़ा पाए, बच्चों की डायरेक्ट कंपोनेंट तो कम हो गया है, इनडायरेक्ट कंपोनेंट अच्छा है तो इनडायरेक्ट कंपोनेंट बढ़ा दो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगी कहानी। दैट इज नॉट एन ऑनेस्ट असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके सीओ का इवैल्यूएशन हुआ, डायरेक्ट कंपोनेंट, इनडायरेक्ट कंपोनेंट दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो सीओ का असेसमेंट आया। अब ये सीओ डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा पीओ के इवैल्यूएशन में। मान लीजिए CO1 अटेन हुआ, एवरेज आपने ले लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे स्टूडेंट्स का के मार्क्स, सारे स्टूडेंट की फीडबैक। अब CO1 कौन कौन से PO में मैप्ड है, PO1 में, PO2 में, PO3 में, किस में मैप्ड है, उस PO का डायरेक्ट कंपोनेंट ये CO का डायरेक्ट इसका अटेनमेंट देगा। अब इसमें फिर इनडायरेक्ट कंपोनेंट आप लाइए, एग्जिट सर्वे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनसे पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर PO1 कितना आया, PO2 कितना आया, PO3 कितना, वो बताएंगे, एवरेज ले लीजिए। ऐसे अलुमनाई से पूछिए, आप हमारे यहाँ से ग्रेजुएट करके गए थे, ये बताइए अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर कि आपको PO1 कितना मिला, तो उसको फिर आप 75, 25, 80, 20 जो भी रेशियो में ऐड कर लीजिए, आपका PO इवैल्यूएशन हो गया। ये डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा PEO इवैल्यूएशन का। उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट आप लाइए, एलुमनाई सर्वे, एम्प्लॉयर सर्वे। इस एलुमनाई में और इस एलुमनाई में फर्क है, ये तो सारे एलुमनाई हैं, लेकिन ये सिर्फ वो होंगे जो आज से 4-5 साल पहले कम से कम ग्रेजुएट करके गए, सीनियर एलुमनाई, क्योंकि PEO की बात हो रही है ना। और फिर दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ऐसे एम्प्लॉयर से पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ से 4 साल पहले एक स्टूडेंट गए थे, आपको क्या लग रहा है कि इनके अंदर ये PEO कितना कितना है। इसी तरह द प्रोसेस में कंटिन्यू फॉर मिशन एंड विजन। ठीक, तो ये तो हुआ असेसमेंट। असेसमेंट पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपको व्हाट यू कांट मेजर, ये तो मेजर की बात हुई, कंट्रोल की बात करनी है। जो सीओ अटेनमेंट आया है, आपका जो टारगेट सीओ था उससे कंपेयर कीजिए। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाएगा। इन जगहों पे प्लस प्लस है कि ऐड होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो टारगेट सीओ और अटेन्ड सीओ में क्या फर्क है, ऐसे ही टारगेट पीओ एंड अटेन्ड पीओ, व्हाट इज द डिफरेंस, टारगेट पीओ अटेन्ड पीईओ, व्हाट इज द डिफरेंस। उन सब डिफरेंस को ऐड कीजिए, propose कीजिए improvement by the OBE admin, and the next time you run the same program, that is expected to be a better program, क्योंकि आपने असेसमेंट की बेसिस पर उसमें चेंजेस प्रपोज किए। तो देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन समझने में उतना मुश्किल नहीं है। आप पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट से आप नीचे से ऊपर असेसमेंट करते चले जाते हैं, और फिर उसकी बेसिस पर आप करेक्टिव मेजर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा टाइम कम है, ये वही उसी का डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको दे रहा था। अब इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे करें, जो इसमें अभी दिखाया ना, ओबी एडमिन इम्प्रूवमेंट करे, ये वाला प्रोपोज्ड इम्प्रूवमेंट, ये कैसे होगा। देखिए 3 डायमेंशनल अप्रोच रहेगी, या तो क्यूरिकुलम चेंज कीजिए, या इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट, या रिवाइजिंग रीडिफाइनिंग द पीओज इटसेल्फ। जो आपके लर्निंग आउटकम्स है उसी को चेंज कीजिए। भाई बार इतनी हाई सेट कर रखी थी कि हम पूरा जोर लगा लिया, नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो डिप्रेस होने के बजाय बार नीचे कर लो। वेट नहीं उठा पा रहे हैं, वेट थोड़ा कम कर लो। तो या तो क्यूरिकुलम इंप्रूव कीजिए, या कोर्स डिलीवरी असेसमेंट इंप्रूव कीजिए, या रीडिफाइन और रिवाइज दी पीओज। जब भी 10 साल 15 साल बाद बैठे तो उसको कर लीजिए। कंसिस्टेंटली अचीव नहीं हो पा रहा है कोई पीओ, तो उसका टारगेट लेवल नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा ओबीई फ्रेमवर्क हो गया। असेसमेंट इवैल्यूएशन की बेसिस पर आपका इंप्रूवमेंट्स होंगे। इंस्टीट्यूशनल लेवल असेसमेंट 2 हो गए, विजन मिशन। प्रोग्राम लेवल 2 हो गए, पीईओ एंड पीओ, और कोर्स लेवल 2 हो गए, सीओ। ठीक है, फिर इंडस्ट्री, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट्स के सबका फीडबैक लेते हुए आपने जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं उसकी बेसिस पर आपने कोर्स प्लानिंग एंड डिलीवरी को चेंज किया, या सिलेबस को चेंज किया, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट टूल्स। इससे आपका ये इंप्रूवमेंट आ गया। ठीक है, फिर ये प्रोसेस हो गया रीडिफाइनिंग ऑफ पीओज। आपने अलुमनाई सर्वे, ग्रेजुएट सर्वे, इंडस्ट्री, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, पीओज, असेसमेंट, फैकल्टी व्यूज सब लिए, और आपने पूछा कि नीड फॉर रीडिफाइनिंग पीओज है। उन्होंने कहा नहीं, तो कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ, तो हाउ टू इम्प्रूव,
या तो क्यूरिकुलम चेंज कीजिए जो बोर्ड ऑफ स्टडीज करेगी, या डिलीवरी मेथड चेंज कीजिए जो मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर करेगा, या पीओ ही को चेंज कीजिए जो कि प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी करेगी और डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड उसको पास करेगा। ठीक, ऐसे ही रीडिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पीईओ, ये स्लाइड भी देख लीजिए। PEOs few years after graduation, 4 to 5 years. PO upon graduation और CO upon the completion of every course in every semester. ये this is when to assess है। Redefining PEOs similar है, alumni survey, graduate survey, industry program coordinator, module coordinator, PEOs assessment, faculty views. Need है या नहीं? नहीं है तो continue, है तो identify changes, curriculum में है तो board of studies, regulations में तो academic council, और पीईओ में ही चेंज होना है तो प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी करे और डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड उसको पास करे या रिव्यू के लिए भेज दे, सेवरल इटरेशंस के बाद इसको चेंजेस को अप्रूव करे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट आउटकम बेस्ड एजुकेशन। नाउ आई कैन टेक योर क्वेश्चंस प्लीज। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। यू वेलकम, यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. सर कॉपी प्लीज शेयर कर Thank दीजिए you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. धन्यवाद सर। सर बेहद स्ट्रक्चरल लेक्चर रहा, धन्यवाद सर। Thank you, sir. वेरी गुड, Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you, sir. नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि सर जैसे हम लोग डिफरेंट कॉलेजों से आते हैं उत्तर प्रदेश के, ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं, तो जी। सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हम यूजीसी से गवर्न होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी एक्ट से होते हैं और कभी कभी सरकार का अलग आदेश आता है, तो मतलब क्या सर प्रक्रिया, मतलब कौन किस किस चीजों से हम लोग गवर्न होते हैं? आप प्राचार्य हैं तो हो सकता है आप थोड़ा जानते हो।